আমি নিউজ মোমেন্টের প্রিয়াঙ্কা। নিউজ মোমেন্ট বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মোমেন্ট বাংলা শুরু করছি। বার্নপুর থেকে সুরজিৎ সেনগুপ্তর অনুসারে মামাবাড়ি থেকে উদ্ধার হলো গলায় দড়ি দেওয়া এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। শনিবার সরস্বতী পুজোর রাতে এই ঘটনায় আসানসোলের হীরাপুর থানার বার্নপুরের রাধানগর রোডের ছিন্নমস্তা লেন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কাটোয়ার বাসিন্দা মৃত নাবালিকার নাম অনুষ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স 13 বছর। রবিবার সকালে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নাবালিকার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অনুষ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত আছেন। অনুষ্কাও সেখানে একটি স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। দিন কয়েক আগে সে আসানসোলের বার্নপুরের মামাবাড়িতে বেড়াতে আসে। শনিবার রাতে সে মামাবাড়িতে অন্যদের সঙ্গে খাবার খায়। তারপর বাড়ির লোকেরা তাকে ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে এই ঘটনা তা বাড়ির লোকেরা পুলিশকে জানাতে পারেননি। তবে প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, কোনো কারণে ওই নাবালিকা মানসিক অবসাদে ভুগছিল, যে কারণে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করেছে। ঘরে আনুন আরও বেশি খুশি। জুপিটার বেশির ফায়দার সাথে এক্স শোরুম, দাম 68,209 থেকে শুরু। এলইডি হেডল্যাম্প, টেলিস্কোপিং সাসপেনশন এবং লার্জ অ্যালয় হুইলস, মোবাইল চার্জার সঙ্গে 2 লিটার গ্লোব বক্স। পিএসজে টিভিএস আসানসোল। ফোন নাম্বার 8695607709 এবং 180012339999। কুলটি থেকে ডিকে লালের অনুসারে ত্রিলোচন মাঝি ওয়ার্ড নম্বরের টিএমসির প্রার্থী। 106 উন্নয়ন কাজের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিশেষভাবে আত্মবিশ্বাসী। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ডিকে লাল। এটি এখানে দেওয়া হলো। স্যার, যদি আপনি সিলেক্ট হয়ে যান, জিতে যান, প্রথম প্রাথমিকতা কী থেকে? হ্যাঁ, মানে ফার্স্ট প্রাথমিকতা কী থেকে? প্রথম দেখুন, যেসব কিছু এখানে নতুন নতুন যেখানে বাড়ি হয়েছে, রোড ড্রেন কিছু কাজ বাকি আছে। আচ্ছা, মেনে হলো সমস্ত পৌর পরিষেবা, প্রাথমিক বা শেষ বলে কোনো নেই। আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে 5 বছর ধরে কাজ করে দিতে মানুষের, এবং সরকারি যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে, সরকারি যে প্রকল্পগুলো আছে, মমতা ব্যানার্জি যেসব প্রকল্পগুলো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জনগণকে জন্য দিয়েছেন, সেইগুলো যাতে মানুষ পেয়ে যায় সেই চেষ্টাই চলছে। এই ব্লকে তো জলের ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেছে 80% মতন। বাকি যে 20%গুলো আছে ওইটা সব কী করে? যেগুলো আছে সেগুলো দেখুন, ওই কাজগুলো আমি দিদি না যেগুলো হবে সরকারি প্রকল্পের কাজ, ওইগুলো কন্টিনিউয়াস প্রসেসে আছে। ওটা হবে, ওটা তো হবে, ওটা বাদ দিয়ে অন্য কাজের কথা বলুন। বিড়লাবাসীকে আপনি কি বলতে চান? বিদ্যাবাসীকে বলতে চাই যে আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে আপনাদের কাছে আমি সমস্ত সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দিতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। রহমতনগরের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার।
শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাপড়ার প্রতি অনেক বেশি সচেতন এবং কর্মস্থান তারা সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে এটি বলেছে। এটি টুইঙ্কেল বার্নওয়াল এবং শীতল সিং দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। मैं शीतल सिंह न्यूज मोमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रहमतनगर हाई स्कूल में पहुंचे हैं, जहां हम कुछ क्लास 12 के छात्रों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ छात्रों से। आप अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार हम लोगों का ऐसा हो जो माहौल को बेहतर बना सके। ऐसा बेहतरी के लिए हम लोगों को एक अच्छा इंसान की ज़रूरत है, जो एक अच्छा इंसान ही माहौल को अच्छा बना सकता है। हमारा लीडर ऐसा हो जो सरकार चलाने में पढ़ा लिखा हो और वतन परस्ती हो, हर चीज़ का ख्याल रखे। ऐसा ही कुछ लीडर जो पढ़ा लिखा हो, हम लोगों का एजुकेशन के लिए काम करे, लाइब्रेरी के काम करे, जो पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करे, हौसला अफजाई के लिए हर तरह का इंतज़ाम करे। यही सब जो ज़रूरत है कि हम लोगों को नौकरी का पढ़ लिख करके हर एक लोगों का ख्वाब होता है, वैसे हम लोग भी अपने ख्वाब रखते हैं। और सरकार से ये अपील है कि हर जो पढ़ाई कर रहे कोशिश करे उसके साथ दे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर ज़रूरत को मुहैया करें। रिपीट। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ और छात्राओं से। नाम? मुसरत परवीन, क्लास 12। आप अपने सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? मैं अपनी सरकार से उम्मीद रखना चाहती हूँ कि वो आगे चलकर हमारी बहुत सारी मदद करे। जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी बन चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बुक नहीं आया लाइब्रेरी में, तो यहाँ पर सारे बुक्स अवेलेबल हुआ हमारे जब हम 12 पार करें, ताकि हमें कंपटीशन की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और को गेम वगैरह का भी सारा इंतज़ाम करे, ताकि बच्चा एजुकेशन के साथ सारा फैसिलिटी ले सके। और स्कॉलरशिप्स वगैरह, कंपटीशन का ट्यूशन्स वगैरह कुछ अच्छा हो, और टीचर्स अच्छे टीचर्स आएँ। और गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो आवाम की मजबूरी को समझ सके और आवाम के लिए काम कर सके। नाम रेशमा खातून, क्लास 12। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें, खास करके लड़कियों को जो अभी नहीं पढ़ रही हैं उनके लिए भी कुछ करें, वो आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। स्कॉलरशिप वगैरह हमें अच्छी दें ताकि हमारे कॉलेज में अच्छी एडमिशन हो पाए। कॉलेज में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दें, जो कॉलेज दूर हैं उनके लिए भी कुछ काम करें कि वो सारे बच्चे दूर जो पढ़ते हैं वो आए अच्छे से। और भी बहुत कुछ लाइब्रेरी वगैरह, हमारी कॉम्पिटिशन की तैयारी वगैरह की अच्छी चीज़ें करें। My name is नाजिया एंड आई रीड इन क्लास 12। मेरा यही रहेगा सवाल कि हम लोग के पूरे आसनसोल में यूपीएससी का एक भी फ्री सेंटर नहीं है। हम लोग का जैसे जो भी होता है ना, प्राइवेट सेंटर वगैरह दिल्ली में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर हम लोग के आसनसोल में एक भी नहीं। पर यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट को ख्याल आता है कि करें, प्रिपरेशन करें, पर इसकी बहुत सारी इसकी ज़रूरत की वजह से वो नहीं कर पाते हैं उनका प्रिपरेशन। बट मेरा यही रहेगा कि स्पोर्ट्स वगैरह जितना भी है सबकी सहूलत हो वगैरह रहे। यहाँ पे लड़कियों के लिए एक भी जैसे ज़्यादा अच्छा लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी वगैरह खोला जाए और डेवलपमेंट को और बढ़ाया जाए। यही रहेगा, जो भी सरकार आए अच्छे से काम करे दिल से। और यही मेरा नाज़िया, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने सरकार से यही चाहूँगी कि वो हमारे एजुकेशन पर ध्यान दें, और जब हम लोग का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को अच्छी एम्प्लॉयमेंट दें, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसा कि मेरे और फ्रेंड्स ने कहा है कि यहाँ पर लाइब्रेरी पढ़ने के बावजूद भी बुक्स नहीं है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है अपनी नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइब्रेरी में बुक्स को अवेलेबल कराएं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खोले हमारे लिए, जिसमें हमको हेल्प मिल सके अपनी आगे पढ़ाई के लिए, और हम लोग अच्छे से एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर अपने आप को डेवलप कर पाएँ। सानिया है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। और एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं पहले चाहती हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन की अच्छी सहूलतें मुहैया हों, और इसके अलावा जैसे सभी तालिब इल्म ने कहा है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर सही नहीं है गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। और लाइब्रेरी वगैरह का ज़्यादा तरक्की भी ज़रूरी है यहाँ पे, तो ये सब होना चाहिए। स्टार्ट। आप अपने गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखती हैं? मैं चाहती हूँ कि हम लोग को पढ़ने लिखने में मदद करे सरकार, और स्कॉलरशिप में भी थोड़ा मदद करे। बहुत सारी ऐसी बच्ची है जिसके पास पैसा होने की वजह से पढ़ा लिखा नहीं हो पाता है। बहुत सारी बच्ची है कि घर में रहती है, उसके लिए कॉलेज फीस उसके लिए बहुत मतलब उसको परेशानी होता है, वो सब देने के लिए थोड़ा स्कॉलरशिप मदद करे। और ये लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल कराए, हम लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वहाँ जाके पढ़े लिखे। मेरा नाम अलीशा है, फ्रॉम क्लास 12।
और मुझे ये बात इस बात की मतलब करना है कि एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ का है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। और एजुकेशन पाने के बाद बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉय नहीं मिलता, इधर से उधर इंजीनियरिंग कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। जॉब तो प्रॉपर रखना चाहिए। गवर्नमेंट आती है, मतलब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगा और चला गया, क्या है मतलब पता तो होना चाहिए ना कि हाँ क्या हो रहा है। अगर आप जहाँ पे मतलब आपने जीता है, कुछ भी किया, गवर्नमेंट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस जगह से आप उठे हैं, जिस आवाम ने आपको सपोर्ट किया है, उसके लिए आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए। आए मतलब इलेक्शन के टाइम पे बस यहीं तक महदूद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉली परवीन है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी सरकार थे वो हर चीज़ के लिए मुहैया करे। जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड के टाइम हर डॉक्टर ने मतलब पढ़ाई के हिसाब से मतलब काम कर रहे हैं, और यहाँ इंजीनियरिंग का भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर जॉब के लिए मुझे तो जॉब ही करना है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जॉब ही करूँगी। मेरा नाम मेहरबान है, क्लास 12 में पढ़ते हैं, और हम लोग को एजुकेशनल चाहिए। एजुकेशन के नाम पे और क्या क्या मीन्स क्या डिमांड रखेंगे अपनी गवर्नमेंट से आप? एजुकेशन में क्या मीन्स लाइब्रेरी? हाँ, हम लोग को लाइब्रेरी के लिए हम लोग को लाइब्रेरी खुला हुआ है, लेकिन हम लोग को स्कूल के लिए अवेलेबल नहीं है, हम लोग को वो चाहिए। और फिर हम आपका नाम? मेरा नाम सिद्रा खानम है, क्लास 12। मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि सेफ्टी होना चाहिए। अभी सेफ्टी की सब ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ हो रहा है, हमारे भी आजकल सेफ्टी चाहिए। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, और लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर कुछ अच्छा गाइड करना चाहिए, जो कि गाइड अच्छा नहीं हो रहा। और न्यू जनरेशन बहुत ही ख़राब हो रहा है, आज आने वाला कल्चर है बहुत ही ख़राब हो रहा है, न्यू जनरेशन एकदम ख़राब हो रहा है, उसको सही किया जाता है। न्यू जनरेशन सही होगी, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है, पढ़ाई हो, सरकार हो, उस चीज़ का सेफ्टी होना चाहिए, और अच्छे से जॉब और अच्छे से ईमानदारी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। आजकल सिर्फ डिग्री है, डिग्री के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए डिग्री चाहिए हम लोग को, डिग्री चाहिए हम लोग को। और डिग्री सिर्फ मिल रहा है, नॉलेज कुछ नहीं है, नॉलेज होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, ताकि सरकार ऐसा बने, ईमानदार बने और बहुत ही अच्छा बने, काबिलियत बने, ताकि न्यू जनरेशन को एक नया हौसला मिले, जो कि बहुत ही खराब। मैं क्लास 12 में हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, बच्चों को गाइड करे। एक यूपीएससी जो कि एक बोली थी क्लास में, यूपीएससी में जो प्रिपेयर करता है, ठीक है, यहाँ तो है नहीं कोचिंग। यहाँ रहमतनगर में एक लाइब्रेरी ओपन है, और मगर हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, मगर उसमें किताब अवेलेबल नहीं है। और बच्चों को गाइड करे, काउंसलर, एक एजुकेशन हो जो आगे चल के कुछ अच्छा काम करे। क्लास 12। जैसे मेरे सारे दोस्तों ने कहा है कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, पर उसमें बुक अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे पढ़ाई का स्टडी का भी बहुत हालात ख़राब है। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारे स्टडी के ऊपर ध्यान दे, और एक ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मुल्क के लिए हम ट्रस्ट होना चाहिए, और बहुत से काम में हमारे साथ दें। यहाँ पे तो बॉयज़ के लिए बहुत से स्पोर्ट्स है, पर गर्ल्स के लिए एक भी स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है। तो हमारे मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट चाइना से जा रहे हैं, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देने के बाद फिर जॉबलेस हो जाकर उनको जॉब दे, और फीमेल स्पोर्ट्स सेंटर खोले, पॉल्यूशन पे भी ध्यान दे। দীঘা থেকে রবি পাসওয়ানের অনুসারে বিজেপি তার প্রার্থীর সমর্থনে নিঘায় একটি সভার আয়োজন করেছে। তারা বোর্ড গঠনে আত্মবিশ্বাসী। প্রমোদ পাঠক, প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির মতো বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। जिस घर में लोग रहते हैं वो जमीन उनका अपना नहीं है, और ईसीएस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कठिन हो जाता है। इसके कारण इच्छा रहते हुए भी जो डेवलपमेंट हम यहाँ करना चाहते थे वो डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाए। उस समय राज्य सरकार का जो म्युनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जो माननीय मंत्री थे उनको बार बार मैंने कहा था कि चलिए केंद्रीय सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वहां हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। और जो लोग 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल से ईसीएल के जमीन पर भी रह रहे हैं, उनको परमिसिव ऑक्यूपेंट यानी अनुमोदित दखलकार का दर्जा दिया जाए, जिससे कि सरकारी सुविधाएं से वो वंचित ना हो सके।
कोला मंत्रालय में हम लोगों ने बात किया था कि जहां जहां आपको कोलियरियां हैं, ईसीएल प्रबंधन ने कोलियरियां तो चालू की, लेकिन कोलियरी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ग्रोसरी शॉप की व्यवस्था, उनके लिए मछली की दुकान की व्यवस्था, उनके लिए आटा चावल की दुकान की व्यवस्था, उनके लिए मिठाई की दुकान की, ये कैसे हो? ये तो ईसीएल को करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ईसीएल ने ये काम नहीं किया, इसलिए पैरेलल एक इकोनॉमी अपने आप तैयार हो गया। अपने आप लोगों की जरूरतें थी, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कोलियरी के बगल में एक मार्केट हो, इलाका अपने आप बसता गया। और ये आज नहीं बसा, ये 40 साल 50 साल से बसता हुआ आ रहा है। उसी समय यदि इसे रोक दिया जाता तो कोई नहीं बसता, लेकिन इतने वर्षों बाद अब इन लोगों के लिए कहीं जाना भी संभव नहीं है, तो ये जा भी नहीं पाएंगे और जमीन का मालिकाना भी इन्हें नहीं मिला, तो डेवलपमेंट फिर कैसे होगा? इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अब कोई बाधा नहीं है। आसनसोल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने के बाद जो लोग भी ईसीएल के जमीन पर यहां रहते हैं, उस जमीन का परमिसिव ऑक्यूपेंट का कागज कोल मंत्रालय के द्वारा आपको दिलाया जाए, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और ये काम नहीं कर सकती। আসানসোল অটো ও মিনি বাসের মধ্যে বিবাদের জেরে ফের উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আসানসোলে। জানা গেছে গত রাতে অটো চালক ও মিনি বাসের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর আজ সকালে বিক্ষুব্ধ মিনিবাস শ্রমিকরা চলাচল বন্ধ করে দেয়। নির্বাচনের ঠিক আগে এই বিরোধ তৃণমূলের ঝামেলা বাড়াতে পারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইউনিয়ন নেতা রাজু আহলুয়ালিয়া বিক্ষুব্ধ পরিবহন শ্রমিকদের বুঝিয়ে বলেন শীঘ্রই বিরোধ মিটে যাবে, তবে তৃণমূলের মধ্যে চরম ক্ষোভ রয়েছে। টোটো চালকদের লড়াইয়ে জড়িত পাড়ার আগ পর্যন্ত এটা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়ায় নির্বাচনী প্রচারের সময় আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ ও তৃণমূল নেতা বাবুল সুপ্রিয় আক্রান্ত হয়েছেন। বাবুল টুইটারে জানান, রোববার নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। বাবুল অভিযোগ করেছে যে হামলাকারী একটি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিল, যার কাছে বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েরই আশীর্বাদ রয়েছে। Physiotherapy clinic, male and female, used machineries for UST, IFT, TENS, MS, short wave defect, wax bath, infrared lamp, etc. Sri Polli GK Roy Saroni, Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School, MOA 7047456855। আসানসোল পুর নিগম নির্বাচনের 6 দিন আগে 29 নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআইয়ের ভাঙন। রবিবার বিকেলে আসানসোলের রেলপাড়ের তরি মহল্লায় এক নির্বাচনী সভায় সিপিআই ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন বেশ কিছু কর্মী ও সমর্থক। তাদের হাতে দলের পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের আইন ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কবিতা যাদব। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, Pol Science, philosophy, BCom. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 9938640667 and 8116183079. সাক্তরিয়া দিশেরগড় প্রেমসাগর দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত শ্রী শ্রী মা ছিন্নমস্তিকা কালীর ৩৮তম মহোৎসবের উদ্বোধন প্রাক্তন সিএমডি রবিবার সন্ধ্যায় ইসিএল এর সূচনা করেন মিশ্রের স্ত্রী পুনম মিশ্র।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলটের প্রাক্তন বিধায়ক শিবদত্ত নন্দজি মহারাজ, মন্দিরের সম্পাদক মানিকলাল আচার্য, মন্দিরের সভাপতি কবিনন্দ দুলাল আচার্য, সমাজসেবক সমীর আচার্য, সদাশিব ত্রিবেদী প্রমুখ। উদ্বোধনী গান পরিবেশন করেন উৎপল ব্যানার্জি। মেলায় দিনভর ভক্তরা আনন্দ উপভোগ করেন। রাতের বেলায় পালা, বাউল গানসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রঙে মগ্ন হয় যাত্রাগুলো। এর পাশাপাশি প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত নরনারাयण सेवा उपभोग करें। बहुत अच्छा संचालन किया है और माँ के स्थान पे आके मैं बोल नहीं पाती हूँ। यह स्थान होता है महसूस करने का और मैं वही महसूस कर रही हूँ। बहुत दिन से इच्छा थी कि यहाँ पे आऊँ, पर माँ ने दादा के द्वारा ही मुझे यहाँ बुलवाया है और मैं आभारी हूँ दादा आपका। मंच पे आज सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे सामने जो भी भाई और हमारे बहन हैं उनको भी सादर प्रणाम। बहुत अच्छा स्थान है। माँ के द्वार पे जब पहुँची हूँ तो अलग ही एक अनुभूति है, अलग ही शांति है। ऐसा लग रहा है सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद बोलूँगी कि आप सबों ने मुझे भी अवसर दिया माँ का दर्शन करने का, यहाँ आने का। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रीमा बेटा की बात को दोहराऊंगी कि मंदिर में आए, दर्शन करें, मेला का भी आनंद उठाएं, पर मास्क का जरूर प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंस रखें। इस प्रोग्राम में आके एक चीज़ तो मैं महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से आयोजन किया है, इतने लोगों के बीच में कि सभी मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं और सब चीज़, सबका एक डिस्टेंस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि माँ का दर्शन मैं कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल कोचिंग सेंटर NETT AIIMS Enterprise Exams by D.K. Lal Sir, Bio Specialist EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes for 11-12 BSc, biology classes, zoology and botany. Ed Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, WV. আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের জন্য বিজেপি নির্বাচন প্রবীণ নেতা অর্জুন সিং নির্বাচনী প্রচারের জন্য আসানসোলে পৌঁছেছেন। তিনি আসানসোল বাজার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বিজেপি প্রার্থী শিবপ্রসাদ বর্মন, আশা শর্মা, ভৃগু ঠাকুর, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি প্রমুখ সহ স্থানীয় বিজেপি নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে আসানসোলে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এবং টিএমসি গুন্ডামিতে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য জামুরিয়া ব্লক থেকে টাউন হলে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত নির্বাচনী কর্মী সভায় সায়নী ঘোষ, বিধান উপাধ্যায়, ভি শিবদাসন দাসু, হরিরাম সিং উপস্থিত ছিলেন। আমি একটু পরে ফোন করছি, একটু পরে। अरे भाई, ए भाई, अरे लेकिन युवा के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि जिस बूथ से हम लोगों को लीड नहीं मिलेगा, वहाँ के युवा का जो प्रेसिडेंट है उसको हम पकड़ते हैं। क्योंकि मुझको ये नहीं सुनना है कि इसने काम किया, इसने नहीं किया है, दीदी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। दादा आपके साथ मेरी क्लियर बात हो चुकी है कि जिस बूथ से हमको रिजल्ट ठीक नहीं लगेगा, जिससे हमको लीड नहीं मिलेगा, वहां पे जो लीडरशिप है उसको हम चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप हरिराम सिंह पे डाल नहीं सकते।
आप नहीं बोल सकते कि एमएलए जिताएंगे, आप नहीं बोल सकते कि दाशु भाई जिताएंगे, आप नहीं बोल सकते বিধানদা দেখে নেবে, आप नहीं बोल सकते কৌশিক বুঝবে। প্রত্যেকটা বুথে যে প্রেসিডেন্ট আছে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যে প্রেসিডেন্ট আছে, ইউথের যে লিডার আছে, দায়িত্ব কিন্তু সবার। কাজে রেজাল্ট ভালো হলে সবুজ আবির খেলা হবে, আর রেজাল্ট যদি ভালো না হয় তাহলে তারপর কাউকে পাওয়া যাবে না, তখন সিনিয়র নেতৃত্বের উপর আমরা সব ছেড়ে দেব, এটা কিন্তু হবে না। SMS of the moment. Life goes on, so don't waste time. Am earning about your mistakes, learn and grow. জীবনে চলতে থাকে, তাই সময় নষ্ট করবেন না। আমি আপনার ভুলগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে শিখুন এবং বেড়ে উঠুন। Thank you for watching our video. If like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.